Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now, before moving into this topic, I would like to request all of you to please like, subscribe and share my channel, and please refer my previous video that is describing motion. The topic of today's discussion is physical quantities and their units. So before moving into this video, I would like to request all of you to please have pauses in between while watching this video. बीच बीच में पॉज देते रहें, फैक्ट्स को समझें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज फिजिकल क्वांटिटीज. सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज लाइक दिस: ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सपोज मैं बोलता हूं कि इंसानी सपने, इंसानी फीलिंग्स, भूख, प्यास, बोरियत, all these are what? All these are feelings. Can you measure feelings? No, you cannot measure feelings. Can you measure your height? Yes, you can measure your height. Can you measure your weight? Yes, we can measure your weight. Okay. Can you measure the size of your room? Yes, you can measure the size of your room also. So all these things, length, breadth, height, weight, mass, etc. All these are what? Physical quantities. All these are called physical quantities. And हम इनको physical quantities क्यों बोलते हैं? Because ये सारे के सारे quantities क्या हैं? All these quantities are measurable in nature. What is the meaning of measurable in nature? Measurable का मतलब आप उनको नाप सकते हो, measure कर सकते हो, right? So examples of physical quantities are length, mass, time, area, volume, distance, displacement, speed, velocity, force, pressure, frequency, current, voltage, power, energy, etc. So all these are measurable quantities. इन सब को आप measure कर सकते हो by any direct or indirect way. So because of this, all these are called as physical quantities. Types of physical quantities. Now, what are the types of physical quantities? Let us see what are the types of physical quantities. Physical quantities are of two types. Number one, scalar quantities, and number two, vector quantities. Scalar quantities and vector quantities. आइए देखते हैं what do you mean by scalar quantities. Scalar quantities, नाम सही समझ में आ रहा है? Scalar. Scalar means to scale. To scale मतलब related to size, इसलिए यहाँ पर scale use हुआ. Scale मतलब scalar. So that means scalar quantities are those quantities that have magnitude but no direction. What is the meaning of magnitude? Magnitude का meaning हो गया यहाँ पर size. सपोज आप पेट्रोल पंप में गए और आपने बोला कि मुझे मेरी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल चाहिए. सो व्हाट इज दैट 2 लीटर? वो 2 लीटर क्या है? व्हाट इज दैट 2 लीटर? 2 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल व्हाट यू नीड फॉर योर व्हीकल. आपके व्हीकल के लिए कितना पेट्रोल आपको चाहिए? 2 लीटर. सो व्हाट इज दैट 2 लीटर? द साइज. यस. सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, दैट इज साइज, but they do not have any specific direction, right? So example के तौर पर मैं देखते हैं यहाँ पर what is the example of scalar quantities में length आएगा, mass, time, frequency, distance, speed, work, energy, etc. Scalar quantities के और भी बहुत सारे examples हैं जो मैं चाहूँगा आप comment section में comment करके मुझे बताएं. I am waiting for your answer, children. स्केलर क्वांटिटीज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल स्केलर क्वांटिटीज हैव नो डायरेक्शन, सो दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन चेंज इन डायरेक्शंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में. स्केलर क्वांटिटीज के डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, दैट इज साइज, बट नो डायरेक्शन. ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है, बट डायरेक्शन नहीं रहता है. अगर स्केलर क्वांटिटी पर डायरेक्शन नहीं रहता है, इसका सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन को चेंज करने से उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती. और हमेशा पॉजिटिव इसलिए रहती है बिकॉज उनमें चेंज ऑफ डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता है. सो आई होप स्केलर क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गया होगा. आइए देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक्टर क्वांटिटीज? So definition of vector quantities goes like this: the physical quantities that have magnitude along with specific direction.
फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया साइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है. फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है स्केलर क्वांटिटीज की तरह, बट उनके साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है. ऐसे टाइप के क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के डिफरेंस को अगर हमको समझना हो तो हम सबसे बेस्ट वे में ये समझ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन किसी स्केलर क्वांटिटीज के साथ अगर हम डायरेक्शन जोड़ देंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है. वो क्या बन जाएगी? वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि हमने उसमें क्या जोड़ा है? डायरेक्शन जोड़ा है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर, दिस इज अगेन स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन आ गया यहां पर. इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि कौन सा क्वांटिटी है? जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें क्या आ गया? उसमें डायरेक्शन आ गया. सो आइए देखते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. सो द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर लाइक दिस: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, impulse, etc. These are the examples of वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आपको, वेक्टर क्वांटिटीज के पास स्पेसिफिक डायरेक्शंस होते हैं. दैट मीन्स उनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन. दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को अगर आप चेंज करोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का एक दूसरा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव ओनली, बट वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इवन जीरो. सो इस डिफरेंस को समझने के लिए आइए देखते हैं. लेट अस ड्रॉ अ लाइन. आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी स्क्रीन पे. सो दिस इज अ लाइन एंड द लाइन इज नेम्ड एज ए बी. इस लाइन के जो दो एंड्स हैं लेट अस नेम एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. Point A and point B are the ends of this line. So what is the length of this line? The length of this line is 30 meter. 30 मीटर सपोज इस लाइन की लेंथ है. इसका मतलब ये है कि पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 30 मीटर है, A से लेके B तक. सो डिस्टेंस A से लेके B तक कितना है? 30 मीटर. A से लेके B तक का मतलब ये है कि मैं चल रहा हूं फ्रॉम A टू B. दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी अगर हम चलेंगे तो डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमको? डायरेक्शन मिल रहा है फ्रॉम ए टू बी, और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? 30 मीटर का डिस्टेंस है. अब अगर हम इसके उल्टा डायरेक्शन में चले, अभी हम चले थे ए से लेके बी तक. ए से लेके बी तक अगर हम चले तो ए बी का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना आया? 30 मीटर आया. और अगर हम उल्टा चलते हैं, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं लाइक दिस, B से लेके A. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A टू B? इट वाज 30. सो B टू A भी डिस्टेंस क्या रहेगा? 30 ही रहेगा. B टू A डिस्टेंस भी क्या रहेगा? 30 ही रहेगा. सो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ? कि A से लेके B तक गए तो भी 30, B से लेके A तक गए तो भी 30. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. सो आप A से लेके B तक जाओ या B से लेके A तक जाओ, डायरेक्शन कैसा भी रहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव 30 ही रहेगी. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी के बारे में, दैट स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. सो इफ स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स A से लेके B तक चलिए या B से लेके A तक चलिए आप, डिस्टेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 30 मीटर ही रहेगी. मतलब वैल्यूज आप कितनी भी चेंज कर सकते हो, 30, 100, 200, 300, 50, 60, कितनी भी, बट डायरेक्शन कितनी भी क्यों ना रहे, डायरेक्शन कैसे भी क्यों ना रहे, इट विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ. A to B and B to A, it will be remain positive itself. That means यहां पर आप कंक्लूजन यहां ये ड्रॉ कर सकते हो कि since distance is a scalar quantity, its value remains the same irrespective of direction. डायरेक्शन कैसी भी रहे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी. मतलब A to B अगर 30 है तो B to A भी 30 ही रहेगा. अगर A to B 30 है और B to A अगर मैं -30 ले रहा हूं तो माइनस साइन आपको क्या शो करेगा? माइनस साइन आपको ये शो करेगा कि वहां पर डायरेक्शन का इफेक्ट हुआ है. और डायरेक्शन का इफेक्ट अगर किसी क्वांटिटी में होता है तो वो स्केलर नहीं होती, वो कौन सी होती है? वेक्टर होती है. और ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में.
मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए सबसे पहले लाइन ए बी, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी द डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 मीटर. 30 मीटर मतलब प्लस 30 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए इट इज माइनस 30 मीटर. वाई माइनस 30? बिकॉज मैं चल रहा था जब ए टू बी तक तो डिस्प्लेसमेंट प्लस 30 था. तो ये प्लस साइन आपको क्या बता रहा है कि आप मूव कर रहे हो ए टू बी. डिस्प्लेसमेंट बी ए मतलब बी टू ए. बी टू ए, पहले आप ए टू बी चल रहे थे तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था 30 मीटर, लेकिन जब आप बी टू ए मूव कर रहे हैं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखिए नेगेटिव हो गई है. सो व्हाट डज दिस माइनस साइन शोज यू? ये माइनस साइन आपको ये बताता है कि आप यहां पर ए बी को क्या लिए हो, ए बी को आपने लिया है रेफरेंस डायरेक्शन. ए बी को आपने लिया है रेफरेंस डायरेक्शन. तो अब ए बी रेफरेंस डायरेक्शन अगर लेकर चल रहे हो तो ए बी के साथ अगर आप चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, प्लस रहेगा. और ए बी के ऑपोजिट चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस. सो ये प्लस और माइनस साइन आपको क्या बता रहे हैं? ये प्लस और माइनस साइन आपको ये बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. अगर आप ए बी को रेफरेंस लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी प्लस 30 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए माइनस 30 हो जाएगी. और अगर आप बी ए को रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं बी टू ए को तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगी, माइनस 30, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगी, प्लस 30 हो जाएगी. दैट मीन्स रेफरेंस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर डिस्प्लेसमेंट की साइन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है. एंड दिस चेंज इन साइन शोज यू व्हाट? दिस चेंज इन साइन शोज यू द चेंज इन डायरेक्शन. इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के चेंज का इफेक्ट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई. सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इसके हिसाब से? आप कंक्लूजन यहां पर ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स साइन चेंजेस एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस डायरेक्शन. जो भी रेफरेंस डायरेक्शन आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट की साइन पॉजिटिव हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी. राइट? दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज विच काइंड ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. इसी तरह और भी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हमने पढ़ा है हमारे एग्जाम्पल्स में, वेक्टर मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीजों में साइन का जो चेंज होता है इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. All vector quantities change their sign according to the change in direction. This shows that vector quantity have a definite effect of the change in direction. वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से वेक्टर क्वांटिटीज के वैल्यू में चेंज दिखता है आपको. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. जहां स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव बनी रहती हैं, डायरेक्शन कैसा भी हो, वहीं वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज देयर साइन with change in direction. I hope ये आपको क्लैरिफाई करता है यहां पर कि what are scalar quantities and what are vector quantities. So क्लास 9 के सिलेबस में एंड क्लास 11th के सिलेबस में आप इन क्वांटिटीज को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको क्लास 11 के सिलेबस में. एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब नाउ फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे वी विल एनालाइज इट whether it is a scalar quantity or whether it is a vector quantity. क्लास 9 ऑनवर्ड्स आप हर क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे कि वेदर इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेदर इट इज वेक्टर क्वांटिटी. सो आइए देखते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज यूनिट्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट्स? यूनिट्स डेफिनेशन आप देख सकते हैं. रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड यूनिट्स. रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स? रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है, से सपोज आपने अभी आपके घर पे एक स्ट्रिंग लिया है एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर. और आपके पास एक रबर बैंड भी है. द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इज 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर. अब आप मुझे ये बताइए कि किसका लेंथ ज्यादा है? 2 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है या 50 सेंटीमीटर ज्यादा है? ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा कि 2 मीटर ज्यादा है. कैसे पता चला 2 मीटर ज्यादा है? बिकॉज यू कैन सी दैट हमने यहां पर 2 यूनिट्स यूज की है. एक यूज की है मीटर
और दूसरी यूज की है सेंटीमीटर। सो व्हाट आर दीज यूनिट्स? यूनिट्स का मतलब होता है कि वो आपको बताते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। यूनिट टेल्स यू व्हाट? यूनिट टेल्स यू दैट विच क्वांटिटी इज बिगर और विच क्वांटिटी इज स्मॉलर। सो जैसे कि आप बता सकते हैं यहां पर विच वन इज बिगर, 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर। 2 मीटर इज बिगर। वाई 2 मीटर इज बिगर? बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता है, हम लोअर क्लासेस से इसको पढ़ते आ रहे हैं, दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है एंड मीटर बड़ी यूनिट है। सो what is the main purpose of using units? Units tells how big or small a given quantity is. मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर लीजिए। यूनिट क्या बताते हैं आपको? यूनिट ये बताते हैं कि कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने वही सेम एग्जाम्पल लिया जो अभी मैंने डिस्कस किया है। 1 मीटर इज बिगर देन 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर यहां पर छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट? बड़ी यूनिट है। वाई बड़ी यूनिट? बिकॉज वी कैन सी दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होता है। सो सेंटीमीटर इज स्मॉलर यूनिट, मीटर इज बिगर यूनिट। हमने यहां लेंथ लिया, लेकिन लेंथ को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, मीटर में भी सेंटीमीटर में भी। दैट मीन्स यूनिट्स को यूज करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। आप मीटर यूज कर सकते हो तो कहीं आप सेंटीमीटर यूज करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, कहीं आप सेंटीमीटर या फिर मीटर यूज ना करके किलोमीटर यूज करोगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। सो दैट मीन्स यूनिट्स को यूज करने का एक डेफिनेट सिस्टम होता है और दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, व्हाट आर यूनिट्स? यूनिट्स टेल्स यू दैट हाउ बिग और स्मॉल अ क्वांटिटी इज। कोई भी क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी होती है ये आपको बताता है यूनिट्स। सो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो एज आई टोल्ड यू, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको बताते हैं कि किस यूनिट को आपको कहां यूज करना है। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज CGS यूनिट, नंबर 4 इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 3 इज FPS दैट इज फुट पाउंड सेकेंड्स एंड नंबर 4 इज SI। अब एक एक का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट इज CGS, द सेकेंड इज MKS, थर्ड इज FPS एंड द फोर्थ इज SI। तो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी सिस्टम को नेम करते हैं, जैसा कि आपने पहले देखा है यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है CGS। CGS। तो इन यूनिट्स की नेमिंग कुछ इस प्रकार हुई है कि इन यूनिट्स की नेमिंग में सबसे पहला जो लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और जो दूसरा लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। और जो तीसरा लेटर है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? टाइम को। पहला लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS इज हाउ मच? सेंटीमीटर। तो C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। दूसरा लेटर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास का यूनिट। मास मतलब G मतलब ग्राम। सो इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम्स। तीसरा लेटर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? टाइम का यूनिट। टाइम का यूनिट मतलब S मतलब सेकेंड्स। सो इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। इसी तरह हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को नेमिंग किया गया है और नेमिंग करने का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट लेटर आपका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड लेटर आपका मास का यूनिट रिप्रेजेंट करेगा एंड थर्ड लेटर आपका टाइम का यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ का जो भी यूनिट है उसका फर्स्ट लेटर, मास का जो भी यूनिट है उसका फर्स्ट लेटर एंड टाइम का जो भी यूनिट है उसका फर्स्ट लेटर। सो आइए देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS। सो CGS का फुल फॉर्म क्या है? CGS का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स मतलब क्या हो गया? द यूनिट ऑफ लेंथ। किसी भी टाइप के लेंथ का यूनिट, किसी भी टाइप के लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा इन CGS सिस्टम। किसी भी टाइप के मास का यूनिट क्या रहेगा? ग्राम रहेगा। और टाइम का यूनिट क्या रहेगा? यहां पर सेकेंड्स रहेगा। CGS, लेंथ के यूनिट का पहला लेटर दैट इज C, मास के यूनिट का पहला लेटर दैट इज G, टाइम के यूनिट का पहला लेटर दैट इज S। CGS, ये हो गई नेमिंग CGS। और मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि CGS इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हाट वी यूज। नाउ द सेकेंड टाइप इज MKS दैट सेकेंड्स। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड्स।
अब आप इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? मतलब ये रहेगा कि इसमें, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। आप ये सीक्वेंस देखिए, लेंथ, मास, टाइम, ये सीक्वेंस में यहां पर नेमिंग होती है यूनिट्स की। लेंथ, मास, टाइम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स। ये सीजीएस से थोड़ी बड़ी यूनिट हो गई। कैसे बड़ी यूनिट हो गई? बिकॉज वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। दैट मीन्स एमकेएस इज अ बिगर सिस्टम ऑफ यूनिट एज कंपेयर टू सीजीएस। तो एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। अगर हमको लेंथ दिया है, सपोज लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, कोई भी लेंथ दी हुई हो, सो लेंथ अगर दी हुई हो, सो सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? सेंटीमीटर हो गई, और एमकेएस यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो गई? मीटर हो गई। सिमिलरली सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या रहेगा? ग्राम, एंड एमकेएस यूनिट ऑफ मास क्या रहेगा? किलोग्राम। इसी तरह आने वाले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे क्लास 9th ऑनवर्ड्स मतलब 9th, 10th, 11th, 12th, कभी भी जिस भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस भी क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम हर क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट इसी तरह डिफाइन करेंगे। सीजीएस यूनिट जैसे कि लेंथ का डिफाइन कर रहे हैं हम, सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड एमकेएस इज मीटर। सिमिलरली सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड एमकेएस यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। आइए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज फुट, पाउंड, सेकेंड। आपको यहां क्लियर हो गया होगा, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास एंड टाइम इज द यूनिट ऑफ सेकेंड्स। एंड द लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम आज के डेट में फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, इस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, इट इज जस्ट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जस्ट मॉडिफाइड वर्जन है आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब यह है कि एमकेएस यूनिट्स जो भी रहेंगे वही सारे यूनिट्स किस में रहेंगे? एसआई में भी रहेंगे। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, एमकेएस यूनिट ऑफ लेंथ क्या था? मीटर था। सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ लेंथ भी क्या रहेगा? मीटर। एमकेएस यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का यूनिट था किलोग्राम, तो एसआई यूनिट ऑफ मास भी क्या रहेगा? किलोग्राम ही रहेगा। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम का यूनिट सेकेंड्स था, एसआई यूनिट्स में भी टाइम का यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड्स रहेगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट आपको ये बताना है, जैसे कि मैंने बताया आपको हर क्वांटिटी के बारे में, कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप आगे पढ़ोगे इन योर सिलेबस, you have to first of all specify that it is a vector quantity or scalar quantity, number 1. Number 2, you have to mention its CGS unit and its SI unit. SI unit मतलब MKS unit ही measure करना है, बताना है आपको. So that means you have to do two things. First of all, आपको उस quantity का nature बताना है कि whether it is scalar quantity or whether it is vector quantity. और दूसरा चीज आपको उसको बताना है कि उसका यूनिट क्या है CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में. सो आई होप ये यूनिट्स का यूज आपको समझ में आ गया होगा. सो एक इंपॉर्टेंट नोट आप ले लीजिए यहां पर, दैट सीजीएस सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. लेकिन अगर हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, वो बिगर यूनिट्स ऑफ सिस्टम है. दैट मीन्स यही रीजन है कि हम हर क्वांटिटी का सीजीएस और एसआई यूनिट क्यों बताते हैं, ताकि हम बता सके कि इन क्वांटिटीज की छोटी क्वांटिटीज को हम मेजर करेंगे सीजीएस में और उनके बड़े वैल्यूज को मेजर करेंगे किसमें? एसआई में. राइट. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. आई होप आपको ये वीडियो कनेक्ट किया होगा. एंड फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून टू Take-A-5 Physics, the online learning sector for learning physics, and like, subscribe and share. Thank you.